Yes, dear students, in the continuation of series of numerical physics, we are here with a numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Now, we will see the numerical. The magnetic field through a circular loop of wire 10 centimeter in radius and 8.5 ohm resistance changes with the time as shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the induced current in the loop and plot it as a function of time. Now here we have taken, if we'll go through this question, we have to determine current in the loop first of all. So determining current, we need to know I is equal to E upon R. Okay. Now here, and in this, radius is given to us 12 centimeter, and the resistance is also given to us, it is 8.5 ohm. Okay, so these two values are given to us, हमको दिया हुआ है. अब यहाँ पर देखें कि करंट जो है magnetic field through a circular loop of wire and this changes with time as shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the induced current. Means यहाँ पर हम magnetic flux की बात करें तो phi is equal to आपका BA cos theta और ये हो जाएगा आपका BA phi. Phi theta जो है 0 है, cos 0 is 1. So we have got this relation, phi is equal to this. Now if we take this d phi by dt, so it will be d by dt b into a is constant, so we are having this relation db by dt which is equal to d phi by dt. Okay, now d phi by dt which is equals to minus d phi by dt. So we can substitute here. If we take this relation, I is equals to minus, instead of writing E, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आपका ये relation आ गया d phi by dt minus d phi by dt into R in denominator, और d phi by dt जो है आपका a upon R dB by dt के इक्वल आ गया आपका, which is equal to this. ये करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आ गया आपका. इसमें a जो है आपका a is equal to पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू आर की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है. आप इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में और हम देखते हैं क्या आंसर मिलता है. ये हो गया आपका पाई इंटू 144 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर में आ गया. ये वैल्यू हमको मिल रही है. अब यहाँ पर हम देखें dB by dt, हमको इस ग्राफ को लेना है, उससे कैलकुलेट करना है. तो I इज इक्वल टू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. A की वैल्यू आ गई आपकी -3.14 इंटू 144 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4 और it is dB by dt as it is, लिख दें. एंड ये तो आपका एरिया आ गया. रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8.5 ओम. तो यहां पर हमको ये करंट की वैल्यू मिलती है. अब dB by dt, तो dB by dt हमको कैलकुलेट करना है इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में. तो हम देखें एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या होगा. तो एट टाइम t इक्वल टू 0 देखें हम 0 टू हम इसको इस टाइप से ले लेते हैं. टाइम 0 टू 2, तो ड्यूरेशन तो आपके यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और जो चेंज हुआ है dB दैट इज फ्रॉम 0 टू 1. dB आपका कितना आ गया 1, dt आपका आ गया 2 सेकेंड्स. तो एट t इक्वल टू 0 हम सब्सटीट्यूट करने जाएंगे
तो हमको क्या रिलेशन मिल रहा है वो देखें हम। I इज इक्वल टू -3.14 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻⁴ divided by 8.5 into this dv by dt, that is 1/2। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल, अब यहां पर देखें हम कि हमारा ये जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका -2.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हम यहां पर देखें ग्राफ प्लॉट कर दें, द वैल्यू इज माइनस है तो करंट आपका नेगेटिव साइड में आ जाएगा ये आपका। तो करंट यहां से लेके मींस अप टू 2 इट विल बी वेरिंग लाइक दिस। Now we will calculate it for 2 to 4. So we are taking it here for t equal to 2 to 4 delta t means dt जो है आपका 4 minus 2 that is 2 सेकेंड हो गया। बट यहां पर हम देखें कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, मींस सॉरी फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो dv there is no change, means it is 1 year, it is 1 year, 1 minus 1 that is 0। So if you substitute in this equation तो हमको क्या रिलेशन मिलता है, I is equals to 0 मिल जाएगा। This is the second case we are getting and this is the first case which we are getting that we have calculated here। Okay, now means इस ग्राफ पे हम देखें तो ये आपका कांस्टेंट है ना, this value is 0 at this। okay, now if we go through the next थर्ड वाले पे चलेंगे तो थर्ड वाले पे देखें आप, ये स्लोप जो है नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव था, इट इज फ्रॉम 4 to 6। तो ये हो गया आपका 6 minus 4, आपका dv by dt जो आ रहा है, dv जो आ रहा है वो आपका जाएगा 6 minus 4 और dt जो है इट इज फ्रॉम सॉरी dv by dt में आपका देखें तो ये आपका आ रहा है 1 to 0, फाइनल वैल्यू आ रही है आपकी 0 हो रही है तो 0 minus 1 और dt जो है फ्रॉम 4 to 6, so it is 6 minus 4 that is 2 सेकेंड और ये आपका माइनस में आ गया। तो इफ विल सब्स्टिट्यूट इट हियर तो करंट की वैल्यू जो होगी आपकी -3.14 इनटू, तो ये ऑलरेडी आपका 144 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 8.5 और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी dv by dt तो ये -1/2 सेम आ रही है ये वैल्यू। अब यहाँ पॉजिटिव हो गई ये वैल्यू, क्यों पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस दिस विल बी पॉजिटिव, सो I will be now it is 2.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, यहां से ये 4 to 6 आ रही है, 4 to 6 आ रही है। तो 4 to 6 पे हम देखें तो ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है ये 2.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। टू कैलकुलेट द करंट हमको मैग्नेटिक फ्लक्स नोन था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो था एक कॉइल में इस तरह से एक्ट कर रहा था, तो फाई को हमने कैलकुलेट किया बी ए cos थीटा, थीटा आपका 0 था तो cos 0 इज 1 हो गया। फिर हम d फाई बाय dt करते हैं तो इट इज d बाय dt बी ए, तो d फाई बाय dt इज इक्वल टू a dv बाय dt आ रहा है और e इज इक्वल टू माइनस d फाई बाय dt होता है और I इज इक्वल टू e अपॉन r होता है। तो हमने इसको करंट के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। करंट के फॉर्म में हमको क्या रिलेशन मिल रहा है, I इज इक्वल टू माइनस a अपॉन r इंटू dv बाय dt। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, r इज रेजिस्टेंस, ये आपका रेडियस था, यहाँ लिख दें दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप एंड एक ग्राफ हमको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में, तो उसके बेसिस पे हमने करंट को कैलकुलेट, करंट को का ग्राफ प्लॉट किया है।
तो करंट का ग्राफ जो आ रहा है ये आपका यहाँ पे जो आ रहा है इट इज -2.6 मिली एम्पियर कहते हैं हम इसको, और इधर की ओर भी आपका पॉजिटिव 2.6 10⁻³ एम्पियर। इन दिस ड्यूरेशन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने से देयर विल बी नो करंट, यहाँ पर करंट नहीं होगा। ये टाइम का ग्राफ है और इधर हम ले रहे हैं करंट ले रहे हैं। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किया जा सकता है।